Hello everyone, welcome to Panacea Tutor. Today we are here with another brand new topic of your Indian geography which covers climate of India. It is a very hot favorite topic in every other competitive examination that you come across. So let's begin with our today's topic which explains us about climate of India. If in one word I have to summarize climate of India, I would like to say it is typical tropical monsoon type of climate. Now you would wonder why only tropical, why not temperate, why not subtropical? See, tropic word is derived from Tropic of Cancer, which passes almost through the center of the country, dividing India into two almost equal halves, the northern half which is above Tropic of Cancer and southern half which is below Tropic of Cancer. That's why the word tropical. See, Tropic of Cancer is a 23.5 degrees latitude which passes in India. Area below Tropic of Cancer is a tropical region, and area above Tropic of Cancer comes in the temperate region. And the word monsoonal comes from the monsoon winds which majorly affect the climate of India. Yes, these three things listed here affect your climate of India, and these are the agenda which we are going to cover in today's video. We'll typically cover what are Indian monsoons, how do they come, where do they arrive from, and all that things. Then jet streams, what local jet streams affect the climate of India, how are weather patterns distributed because of that. Then the last phenomena, the Indian Ocean dipole. So let's begin. The first thing that we are going to cover is your Indian monsoon. See, monsoon word is derived from Arabic word which is mawsim. It typically means seasonal reversal of winds. Now we need to understand this seasonal reversal of winds. For that I have substantiated it with a map. See, monsoon winds are affected by trade winds. Trade winds typically occur near your equator. They are the winds that converge on equator. Now you'll wonder what is equator? See, this is your whole earth. In the center, the 0 degree latitude is your equator, and above it in northern hemisphere it is Tropic of Cancer, and below here it is Tropic of Capricorn. The trade winds converge here, but due to the Coriolis effects of the winds, Coriolis force, these trade winds are diverged towards the Indian peninsula, which are referred to your southwest trade winds. Now you must be wondering what is Coriolis force? See, Coriolis force is the force. See, wind does not move in a straight manner. It always appears deflected. तो ये जो deflected formula होता है, that means अगर wind को ऐसे move करना था, तो wind will never move this way. Never in a straight manner, it will appear deflected. Now this deflection is towards the right in northern hemisphere, मतलब ये equator से ऊपर वाले area में, and this deflection is towards the left in your southern hemisphere, and this effect is due to your Coriolis force. अब इसी Coriolis force की effect की वजह से जो आपकी साउथ वेस्ट मानसून है वो इंडिया में वेस्टर्न कोस्ट से एंटर करती है. इसको आप स्पेसिफिकली साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स बोलते हैं या फिर एडवांसिंग मानसून बोलते हैं. ये आपके यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स विच इज अ कंटिन्यूअस रेंज, यहाँ पे गैप्स के थ्रू इंडियन पेनिनसुला में एंटर करती है. साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. वन इज योर अरेबियन सी ब्रांच. हेयर इज योर अरेबियन सी ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एंड हेयर इज योर बे ऑफ बंगाल. So these kind of trade winds enter your Indian peninsula through two portions, that is your Arabian Sea branch which enters on the western coast and your Bay of Bengal branch which enters in your northeastern states. जब ये वेस्टर्न कोस्ट पे होती हैं तो ये केरला में ऑलमोस्ट 1 जून पे स्ट्राइक करती हैं, और जब ये बे ऑफ बंगाल से एंटर करती हैं तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है आपके, इनको ऑलमोस्ट 20th मई के अराउंड और 3rd वीक ऑफ मई दे एंटर हेयर. दैट मीन्स आपकी जो मॉनसून है वो यहीं से एंटर करती है. दिस इज वन डायरेक्शन. देन इट गोज थ्रू द इंडियन पेनिनसुला. These drift towards your northern side. From here they get drifted towards this side. This is how your southwest monsoon works.
नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये ऐसे ही क्यों जा रहे हैं, ये ऊपर क्यों नहीं चले गए सीधा? दिस इज बिकॉज यहाँ पे हमारे हिमालयस की नॉर्थ ईस्ट में हिमालयस की एक कंटिन्यूस रेंज है. द हिमालयाज एक्ट एज बैरियर्स फॉर दीज ट्रेड विंड्स. बैरियर्स मतलब ऑब्स्टैकल्स की तरह काम करती हैं. ये इन विंड्स को जब ये एंटर करती हैं, यहाँ पे स्ट्राइक करती हैं, इनको क्रॉस नहीं करने देती हैं. सो दीज विंड्स आर डेफिनेटली डिफ्लेक्टेड बैक. तो जब ये पूरे इंडियन पेनिनसुला के साथ डिफ्लेक्ट होती हैं, तब इन ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है. सी आर हिमालयाज इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन. तो इन ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन चेंज हो गई है, बस विंड्स तो वही है. फ्रॉम नाउ ऑन जब ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, दीज आर कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स. दैट मीन्स अब इनकी जो एरोज हैं वो ऐसे आ जाएंगी. दे विल कवर द होल एक्सपेंस लाइक दिस. That means we have two-way process in our monsoon. One is southwest trade winds that moves in two branches. One is Bay of Bengal branch and one is Arabian Sea branch. और ये हिमालय से टकरा के वापस आती हैं because they act as barriers for these winds and now they are called as northeast trade winds. This phenomena is your seasonal reversal of winds, जो कि आपके मानसून शब्द का मतलब है. अब आप देखो, ये सी है, ये लैंड है, तो ये विंड्स जो है वो सी से लैंड की तरफ ट्रैवल कर रही हैं. और ये टाइम कौन सा था? जून का टाइम. तो ये समर का टाइम है. और आप ये देखो, बाय योर विंटर सीजन योर विंड्स रीच हेयर बाय ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर. सो विंटर्स के टाइम पे ये लैंड से सी की तरफ बढ़ रही हैं बिकॉज द विंड्स आर गेटिंग बैक. सो दिस टू वे प्रोसेस इन योर समर एंड विंटर सीजन कंप्राइजेज योर मानसून. जो ये वाली विंड्स हैं ये सबसे ज्यादा रेनफॉल कॉज करती हैं आपके मेघालय रीजन में. यहाँ पे मौजिनराम, चेरापूंजी नाम की बहुत प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश रिकॉर्ड, मैक्सिमम रेनफॉल इज रिकॉर्डेड इन दीज स्टेट्स. और जो आपका लैंड एक्सपेंस में लास्ट वाला रीजन हो जाता है ऑलमोस्ट, दैट मीन्स द स्टेट्स कंप्राइजिंग लाइक पंजाब, हरियाणा, यहाँ ये सबसे कम रेनफॉल के शिकार होते हैं. लेस देन 65 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इज रिकॉर्डेड इन दीज रीजन्स. इसी चीज को डिटेल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले साउथ वेस्ट मानसून की बात करते हैं. अगर आप साउथ वेस्ट मानसून देखो, कैन यू सी द एरोज इन दिस पिक्चर? यहाँ पे मैडागास्कर नाम की जगह है जहां पे हाई प्रेशर बनता है. लेट मी टेल यू अ फैक्ट अबाउट द विंड मूवमेंट कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है. तो आप ये देखो, मैडागास्कर जो अफ्रीका की कोस्ट पे है, ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, वहां पे हाई प्रेशर बनता है. और यहाँ पे तिब्बतन प्लेट्यू है जहां पे लो प्रेशर बनता हो. और ऑल थ्रू आउट द इंडियन पेनिनसुला आल्सो वी गेट अ लो प्रेशर काइंड ऑफ थिंग. तो मैंने आपको अभी बताया कि विंड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टुवर्ड्स लो प्रेशर एरिया. तो इसका फिनोमेना भी ऐसा ही कुछ है. दीज विंड्स फ्रॉम हेयर विल ट्रैवल फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टुवर्ड्स लो प्रेशर एरिया. और आप देखो, सबसे पहले आफ्टर कलेक्टिंग मॉइस्चर फ्रॉम द ओशियन, ट्रैवल करते करते सबसे पहला लैंड एरिया वेस्टर्न घाट्स is encountered here. और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार इज encountered. Then we have these north eastern states. तो ये एरियाज आपके हैवी रेनफॉल वाले एरियाज होते हैं. मैक्सिमम रेनफॉल आपकी यहाँ मेघालय में मौजिनराम और चेरापूंजी है, वहां पे रिकॉर्ड हुई है. और यहाँ पे इन दिस रीजन वी रिकॉर्ड हैवी रेनफॉल. ये दो ब्रांचेस वाली बात है. दिस इज योर अरेबियन सी एंड दिस इज योर बे ऑफ बंगाल. ये दोनों ब्रांचेस में ये जो विंड्स है ये एंटर करती हैं. फिर ये यहाँ पे हिमालय से स्ट्राइक करती हैं और बाकी का प्रोसेस आपका हिमालय से स्ट्राइक होने के बाद शुरू होता है. और वो जो बाकी का प्रोसेस है दैट वी इंक्लूड इन योर नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो कि आपकी डिफ्लेक्शन बैक है. जब हिमालय से यहाँ पे साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स टकरा जाती हैं तो यहाँ पे दे टेक अ यू टर्न और इनके एरोज कुछ ऐसे दिखते हैं. तो मैक्सिमम ये जो एरिया है ना, साउथ आंध्रा एंड योर तमिलनाडु स्टेट, they experience flood in your November-December season because maximum expanse ये winds जो है ये Bay of Bengal से cover करती हैं और land area बहुत कम comparatively cover कर पाती हैं. So this is how your northeast monsoon is deflected back towards the southern part of the country. अब इसमें migration of ITCZ जो है, ITCZ I hope you know it is intertropical convergence zone. ये इक्वेटर के 5 डिग्री अबव एंड 5 डिग्री बिलो अकर करता है. तो जब ऐसा फिनोमेना होता है तो आपका ITCZ जो है वो साउथ ऑफ पेनिनसुला जो है वो शिफ्ट हो जाता है. आई होप अभी आपको ये फिनोमेना, ये जो
प्रोसेस है आपका साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स और आपका नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स का आना जाना समझ में आया होगा. बिफोर आई प्रोसीड ऑन टू माई नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट सब टॉपिक, आई वुड लाइक यू ऑल, अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे ऑफलाइन कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो. यू कैन सी दिस स्लाइड where we definitely have different batches accommodating different students who want to prepare for IAS or PCS. We have 3 batch slots. You can enroll in any of these and boost up your preparation for UPSC or PCS or any other competitive exam that you are preparing for. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम ऐसा समझते हैं कि जो मॉनसून विंड्स हैं वो सिर्फ इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं. ऐसा नहीं है. यू कैन डेफिनेटली सी द पिक्चर हेयर. ये जो आप रेड में एक्सपेंस देख रहे हो, दिस इज योर कंप्लीट अर्थ. दिस होल रेड एरिया एक्सपेंस, दिस होल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ योर मॉनसून्स. बट आप ये देखो, अगर मैं हाफ कर दूं इस ग्लोब को, 0 डिग्रीज पे हाफ कर दें हम, तो इसका इधर वाला जो साइड है, यहाँ पे जो मॉनसून का इफेक्ट है वो बहुत कम देखने को मिलता है. इंडिया कंट्री के ऊपर मॉनसून का इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है. दैट मीन्स मॉनसून विंड्स आर प्रोमिनेंट हेयर. दैट्स वाई हमारा जो क्लाइमेट है इस चीज के काफी इन्फ्लुएंस में. बट ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में बाकी जो जगहें हैं वहां पे इसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है. सो यू कैन डेफिनेटली मेक आउट हाउ द विंड सिस्टम, हाउ द प्रेशर डिफरेंसेस डिविएट योर मॉनसून्स. अब एक थोड़ी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं. तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आती है हमारी लू. लू बेसिकली क्या है? ये हॉट ड्राई विंड है जो कि आपकी समर सीजन में ब्लो करती है. और ये वही विंड है जो आपकी थार डेजर्ट से, जो कि आपकी ये राजस्थान स्टेट है, यहाँ पे अरावली माउंटेन्स है, इसके बिल्कुल वेस्ट में आपका थार डेजर्ट है. या तो थार डेजर्ट से आती हैं, या फिर ये ईरानियन डेजर्ट से आती हैं, या फिर बलोच डेजर्ट से आती हैं. सो दीज ओरिजिनेट फ्रॉम हेयर एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रीम हीट कॉजिंग मैकेनिज्म्स इन योर समर सीजन. और सेकेंड है आपका हीट वेव. हीट वेव जो है ये समर सीजन में आती है. इसकी वजह से बहुत सारे लोग समर सीजन में दे डाई बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम लिविंग कंडीशंस, नो सर्वाइवल पॉसिबल एट ऑल. उसके बाद आता है आपका अक्टूबर हीट. जब यहाँ पे आपकी साउथ वेस्ट ट्रेड विंड स्ट्राइक करती हैं, ये ऑलमोस्ट इन द मंथ ऑफ जून. टुवर्ड्स योर पंजाब दे रीच इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड they retreat in your August-September region. Then by October-November they reach the south part of the state. तो ये अक्टूबर वाले टाइम में जो नॉर्दर्न इंडिया है ना आपका, that experience normal kind of temperatures, very clear, very hot and very humid weather. तो इसको famously October heat भी बोला जाता है. The another phenomena that we discovered in climate of India is your thunderstorm rains. अब thunderstorm rains बेसिकली समर सीजन में जो आपकी आंधी चलती है ना किसी टाइम, दे आर डेफिनेटली रेफर्ड टू एज थंडरस्टॉर्म रेन्स. अब इसमें होता क्या है? इसको नॉर्वेस्टर्स बोलते हैं इन ज्योग्राफिकल लैंग्वेज. इसके अंदर आपकी टोरेंशियल रेन्स आती हैं और कभी कभी इट इज अकम्पनीड बाय हेल स्टॉर्म्स ऑल्सो. हेल स्टॉर्म मतलब वो जो गड़े पड़ते हैं. अब इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग रीजन्स में. इन बंगाल इट इज कॉल्ड काल बैसाखी. यू कैन डेफिनेटली रेफर टू द मैप. दिस इज योर बंगाल रीजन. यहाँ पे इसको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है. देन इट इज कॉल्ड बरदौई चिला इन योर असम स्टेट. असम इज समवेयर हेयर अंडर अरुणाचल प्रदेश. यहाँ पे इसको बरदौई चिला के नाम से जाना जाता है. एंड इट इज कॉल्ड मैंगो शावर इन योर पेनिनसुलर रीजन. दिस इज योर पेनिनसुलर रीजन. हेयर इट इज कॉल्ड योर मैंगो शावर्स. तो दिस इज अबाउट योर थंडरस्टॉर्म रेन्स. विद दैट हमारा जो बेसिक क्लाइमेट का पोर्शन है वो कवर हो चुका है. अब हमारा सेकंड नंबर पे आता है जेट स्ट्रीम. अब इंडिया में सिर्फ 2 मेन टाइप के जेट स्ट्रीम हैं जो हमारे वेदर को अफेक्ट करते हैं. वन इज ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड द अदर इज वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. सबसे पहले बात करते हैं आपके ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में. कैन यू रेफर टू द पिक्चर हेयर? इन द समर सीजन ये जो तिब्बतन प्लेट्यू है ना आपका, यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो जाता है. लो प्रेशर डेवलप होता है तो एयर क्या करती है? राइज करती है. ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के साथ मिलती है. जेट स्ट्रीम बेसिकली आपकी हवा की मूवमेंट है अक्रॉस द ग्लोब इन योर ट्रोपोपॉज. तो जब ये यहाँ पे मिलती है ना तो ये विंड की डायरेक्शन चेंज कर देती है और ये इंडियन पेनिनसुला में यहाँ पे साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स को जो है स्ट्रॉन्ग कर देती है. दैट मीन्स पहले से साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स समर सीजन में यहाँ पे हमारे लो प्रेशर जोन की तरफ बढ़ती हैं एंड सेकेंड नोश पे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी बढ़ती है. तो ऑल इन ऑल ये विंड्स मिलके हमारे इंडियन मॉनसून को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देती है.
दैट मीन्स वी विल एक्सपीरियंस मोर रेन्स बिकॉज ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम. और जेट स्ट्रीम फिक्स नहीं है कि हर साल होता ही होता है, इट इज अ रेयर फिनोमिना. फिर बात करते हैं आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की. अब वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम में जो आपकी हवाएं हैं वो मेडिटेरेनियन सी, जो कि आपकी अफ्रीका की कोस्ट पे है. दिस इज योर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये मैप देख सकते हो आप. अफ्रीका की कोस्ट पे यहां पे आपका मेडिटेरेनियन सी है. इस मेडिटेरेनियन सी में विंटर सीजन में आपका हाई प्रेशर डेवलप होता है. जब विंटर सीजन में यहां हाई प्रेशर डेवलप होता है, एट द सेम टाइम नॉर्दर्न इंडिया में, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाले इंडिया में लो प्रेशर डेवलप होता है. और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि विंड्स जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करती हैं. तो विंड्स विल ट्रैवल लाइक दिस. इनको फेमसली आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी बोलते हो. एंड दीज विंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड योर वेस्टर्लीज. दीज ओरिजिनेट फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी. तो ये भी आपके विंटर सीजन में जो स्नोफॉल होती है या रेनफॉल होती है इन योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन विंटर्स इज बिकॉज ऑफ दीज डिस्टर्बेंसेस. सो दिस इज ऑल अबाउट योर जेट स्ट्रीम. इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका इंडियन ओशन डायपोल. इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है? देखो, जब भी वर्ल्ड के सी सरफेस टेम्परेचर्स में चेंजेस आते हैं ना, तो दैट समवेयर अफेक्ट्स योर वेदर पैटर्न्स ऑल्सो. ऐसे ही हमारे इंडियन पेनिनसुला के नीचे आपको पता है कि इंडियन ओशन है. ये इधर अरेबियन सी है इसके ईस्ट वेस्ट कोस्ट पे, और इधर बे ऑफ बंगाल है. अगर इसकी अरेबियन सी ब्रांच में, इंडियन ओशन की अरेबियन सी ब्रांच में ज्यादा वार्मिंग हो रही है, मतलब यहाँ पे एवरेज से ज्यादा वार्मिंग हो रही है सी सरफेस टेम्परेचर में, और इधर कंपैरेटिवली कूलर है, तो ये जो है आपकी मॉनसून को स्ट्रेंथन करता है फिनोमेना. क्योंकि ऑलरेडी यहाँ मेडागास्कर से कुछ विंड्स आ रही थी, ठीक है, जो ऑलरेडी अपने साथ कुछ मॉइस्चर लेके आ रही थी और इंडियन पेनिनसुला में बारिश करेंगी. अगर इंडियन ओशन में और भी ज्यादा वार्मिंग हो जाए नॉर्मल एवरेज से ज्यादा, तो ये और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगी इसको, तो हमारी मॉनसून स्ट्रॉन्गर नहीं होगी. सो दिस इज योर पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल. और इसी के ऑपोजिट मैकेनिज्म हो जाता है आपका नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल. उसमें क्या होता है, इस वाली साइड अब वार्मिंग ना होके कूलिंग ज्यादा होती है, और बे ऑफ बंगाल वाली साइड, जो आपकी इंडियन ओशन की बे ऑफ बंगाल वाली इस साइड वाली ब्रांच है, यहाँ पे वार्मिंग ज्यादा हो जाती है. अब आप ये देखो, एक यहाँ पे वार्मिंग वाला रीजन है और एक यहाँ पे वार्मिंग वाला रीजन. तो यहाँ से जो हवाएं आएंगी वो डेविएट नहीं, दो पार्ट्स में ना डिवाइड हो जाएंगी. आधी इधर से इधर जाएंगी और आधी इधर से इधर जाएंगी. दैट मीन्स दे आर डिवाइडेड इनटू टू. तो कहीं ना कहीं ये हमारे इंडियन मॉनसून को वीक बनाएगा. दैट मीन्स दिस विल बी नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंडियन ओशन डायपोल. आई होप आपको इस वीडियो में सब समझ में आएगा. तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं बिफोर वी टेक अप क्वेश्चंस. सबसे पहले आता है आपका ट्रेड विंड्स का कॉन्सेप्ट. ट्रेड विंड्स आपकी दो टाइप की हैं. वन इज योर साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स एंड द अदर इज योर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स. साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स इंडियन पेनिनसुला को वेस्टर्न कोस्ट से और अरेबियन सी ब्रांच से स्ट्राइक करती हैं, राइट. ये हमारे इंडियन पेनिनसुला में एंटर करती हैं और नॉर्थवर्ड साइड में ड्रिफ्ट हो जाती हैं, राइट. और जो आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो इस साइड एंटर करती हैं और इधर ऐसे ड्रिफ्ट हो जाती है. सो दिस इज योर साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स का कॉन्सेप्ट. इन्हीं को आप मॉनसून विंड्स बोलते हो बिकॉज दिस इन्हीं की सीजनल रिवर्सल आती है. फिर उसके बाद आती है आपकी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, यहाँ हिमालयाज दे एक्ट एज बैरियर्स फॉर दीज विंड्स, और जब इनसे टकराती हैं तो ये विंड्स डिफ्लेक्ट बैक और ये बे ऑफ बंगाल से थोड़ा मॉइस्चर कलेक्ट करके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसी स्टेट्स में रेनफॉल लेके आते हैं. और कभी कभी इतनी ज्यादा रेनफॉल हो जाती है कि यहाँ पे फ्लड्स भी आ जाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रेड विंड्स. सेकेंड थिंग हमने पढ़ी थी अबाउट जेट स्ट्रीम्स. अब जेट स्ट्रीम्स में भी हमने दो पार्ट्स किए थे. वन वॉज योर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड वन वॉज योर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की बात करूं तो तिब्बतन प्लेटू में यहाँ पे लो प्रेशर होता है इन समर्स, तो जो आपकी जेट स्ट्रीम है वो इस एरिया से कॉन्ट्रैक्ट करती है और इंडियन बे ऑफ बंगाल कवर करते हुए यहाँ पे एंटर करती है. तो दिस इज हाउ इट स्ट्रेंथन्स योर मॉनसून का कॉन्सेप्ट. देन कम्स योर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की बात करूं तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जो मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होती है. यहाँ पे सपोज अफ्रीका है, वहां से ओरिजिनेट होके, क्योंकि यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में हाई प्रेशर बनता है और यहाँ पे इंडियन पेनिनसुला में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर बनता है, तो ये इस तरफ डेविएट होती जाती है. तो दिस ब्रिंग्स योर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और योर वेस्टर्लीज. और तीसरा कॉन्सेप्ट था आपका इंडियन ओशन
डायपोल का। इंडियन ओशन डायपोल मतलब इंडियन ओशन में या तो वार्मिंग एवरेज से ज्यादा हो अरेबियन सी ब्रांच में, या फिर कूलिंग इफेक्ट हो, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अगर वार्मिंग अरेबियन सी ब्रांच में ज्यादा है तो इट विल स्ट्रेंथन योर मॉनसून, अगर कूलिंग इफेक्ट अरेबियन सी ब्रांच में ज्यादा है तो इट विल नेगेटिवली अफेक्ट योर इंडियन मॉनसून। So this is all we have covered. Now let's take up a few questions and test whether you have definitely achieved something through this video or not. So my first question says, which region gets the first monsoon in summer? A option Himalayas, B option Western Ghats, C option Eastern Ghats, D option Gangetic Plains. Pause the video and try answering. The correct answer here is Western Ghats. तो अगर आपने रिलीफ इंडिया का स्टडी किया हो तो मैंने आपको वैसे भी इस वीडियो में इंडियन पेनिनसुला में रिपीटेड बताया है कि वेस्टर्न घाट्स पे यहाँ पे आपकी रेनफॉल सबसे पहले स्ट्राइक करती है आउट ऑफ ऑल दीज 4 रीजन्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिट्रीटिंग मॉनसून withdraws itself from. Please go through all the 4 options, pause the video and try answering. The correct answer here is northwest India to Bengal and then to Kerala. Retreating monsoon किसको बोलते हैं? To your north east monsoon, जो आपने सेकेंड ब्रांच कवर की थी। ये आपका इंडियन पेनिनसुला है। अब हिमालय से स्ट्राइक करके सी नॉर्थ वेस्ट इंडिया से, नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज दिस, यहां से वापस आते आते ये इधर टुवर्ड्स योर बंगाल साइड, देन फ्रॉम बंगाल टुवर्ड्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल देन टू केरला। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following state receives rainfall due to western disturbances? Scan the options and try giving the answer. The correct answer is A, पंजाब। पंजाब को इतनी साउथ वेस्ट मॉनसून या साउथ वेस्ट ट्रेड विंड से रेनफॉल नहीं मिलती है, इट इज लेस देन 65 सेंटीमीटर। बट जो आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं जो कि आपकी मेडिटेरेनियन सी से आती हैं इन योर विंटर सीजन, तब पंजाब में ज्यादा बारिश होती है कंपैरेटिवली। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम गंगा डेल्टा टू पंजाब प्लेन्स, इट इज बिकॉज। प्लीज स्कैन थ्रू ऑल द ऑप्शंस एंड गिव मी द आंसर। द करेक्ट आंसर हेयर इज ए, मॉनसून करंट मूव्स वेस्टवर्ड्स अलोंग द गंगा प्लेन एंड बिकम्स ड्राई। सी, अगर आप इंडिया के मैप को ध्यान से स्कैन करो, जब भी विंड्स ओशन के ऊपर होती है ना, तभी वो मॉइस्चर कलेक्ट कर पाती हैं किसी वाटर बॉडी से। अब आप ये देखो, जब साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स भी आ रही थी और ये एंटर करती हैं, ये नॉर्थ ऑफ इंडिया यहाँ तक पहुँचती हैं, ये कितना लैंड एक्सपेंस कवर कर चुकी हैं। और अगर आप बे ऑफ बंगाल वाली साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स की बात करो तो ये ऑलरेडी कितना सारा लैंड एक्सपेंस यहाँ से यहाँ कवर कर चुके हैं। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है वो आपका गंगा प्लेन्स वाला पार्ट नहीं है। सो हेयर योर मॉनसून, मतलब गंगा प्लेन्स आपके यहाँ है समवेयर हेयर, और ये आपके पंजाब हरियाणा प्लेन्स है। तो यहाँ तक आते आते जो मॉइस्चर लेवल है ना विंड्स का, वो कम हो जाता है, इसीलिए आपकी जो मॉनसून है वो यहाँ पे वीक हो जाती है। लेटर द लैंड कम्स द ड्रायर इट इज कंपैरेटिवली। मतलब जैसे जैसे ओशन के ऊपर से आप लैंड में जाते हो तो जो फर्स्ट लैंड एनकाउंटर करते हो ना, वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। जैसे जैसे वो लैंड का एरिया बढ़ता जाता है, जितनी जितनी दूर कवर करते जाते हो, वैसे वैसे विंड्स का मॉइस्चर खत्म होता जाता है, अगर उनके पास कोई वाटर बॉडी एनकाउंटर करने को नहीं हो। दैट इज व्हाई योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू लाइक द कंटेंट इन टुडेज वीडियो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर Panacea Tutor. Thank you so much for joining us.